جی اب دوبارہ شروع سے بتائیں، شروع سے بتائیں۔ کی علامت مضارع اسم مفعول جو ہے وہ مضارع مجہول سے بنے گا۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ کریں گے کہ علامت مضارع ختم کر دیں گے۔ دوسرا یہ کریں گے کہ شروع میں میم مفتوحہ لگا دیں گے۔ ٹھیک ہو اس گیا۔ کے بعد عین کلمے کے بعد جو ہے وہ واو لگا کر عین کلمے کو ضمہ دے دیں گے، اور آخری حرف پر جو ہے وہ تنوین 2 پیش دے دیں گے۔ شاباش۔ تو یہ تو یود ربو سے کیا ہو جائے گا؟ یضرب سے بن جائے گا مضروبن۔ مضروب۔ ٹھیک ہو گیا مفعول۔ جی۔ جی برہان بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس میں مفعول بنانے کا طریقہ اور اس کی گردان سنائیں گے۔ پہلے آپ بنانے کا طریقہ سنا ایک مرتبہ۔ ہاں جی ٹھیک۔ جو اس میں مفعول ہے حضرت، وہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ مضارع مجہول سے ہم اس کو بنائیں گے، اور اس کو جی بنانے کا طریقہ یہ ہوگا 4 سٹیپس میں کہ جی پہلے نمبر پہ علامت مضارع کو ہٹا کے وہاں پہ میم مفتوحہ لگا دیں گے، اور جی اس کے ٹھیک ہو گیا۔ بعد ہم فا یہ تو ہو گیا، اس کے بعد عین کلمے کے ضمہ دے کے اس کے ساتھ ہم واو ساکن اضافہ کر دیں گے، اور آخری حرف کو تنوین دے دیں گے۔ ہاں جی یہ ہو گیا۔ دو شاہدہ یا شہادو سے کیا بن جائے گا؟ شاہدہ یشہدو سے بن جائے گا مشہودن۔ مشہود۔ ٹھیک ہو ہاں گیا، جی یہ ہو جائے گا ہاں جی صاحب مشہودن السلام مشہودان۔ علیکم۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی گردان سنا مشہود۔ ہاں جی مشہودن مشہودانی مشہودون، پھر مشہودات ہاتن، یہ ہو جائے گا مشہود مشہودتن۔ مشہودتن مشہوداتن مشہوداتانی، پھر مشہوداتاتن مشہوداتن مشہود داتن۔ ہاں جی داتن۔ شاباش۔ جی جی ضیاء صاحب جی کل کلاس میں تھے آپ؟ میرے خیال میں نہیں تھے، لگ رہا تھا مجھے۔ جی میں نہیں تھا، لیکن میں نے کلاس سنی ہے جی، میں آیا نہیں تھا جی 11 سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جی بنا پائیں گے آپ اس میں مفعول؟ ہاں جی جی بنائیں گے، کون سا بنانا ہے جی؟ اس میں مفعول کیسے بناتے ہیں یہ پہلے آپ سنائیں گے؟ یہ جی مضارع مجہول سے بنے گا جی، شاباش۔ پہلا اسٹیپ یہ کہ مضارع مجہول سے بنے گا، کس طرح بنے مجہول گا؟ سے بنے گا جی۔ یہ جیسے ینصرو ہے تو ہم نے اس کا فعل مضارع کی علامت ہٹا دینی ہے اور اس کی جگہ میم مفتوح لے آنا ہے، اور عین جی کلمے کی جگہ ہم نے وہ ساکن دے دینا ہے اور واو کا عین کلمے اضافہ کر کی دینا ہے، اور آخری جی عین کلمے کی جگہ وہ ہم نے ذمہ دے دینا ہے جی۔ ہاں عین کلمے پر ضمہ دینا ہے، اس کے بعد واو بڑھا دینا ہے۔ ہاں واو بڑھا دینا ہے اور آخری لفظ پہ تنوین دے دینی ہے، ہاں تو جیسے ناصرہ ینصرو سے منصورن۔ ینصر سے منصور۔ ٹھیک، بہترین ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس جی کی گردان سنائیں۔ منصور۔ جی منصورن منصوران منصورن، اور منصوراتن منصوراتان منصورن منصوراتن۔ منصورات۔ منصورات۔ جی جی کاسبہ یکسبو۔ کاسبہ یکسبو سے خالد منظور گردان سنا اس میں مفعول کی۔ کسبہ یکسبو سے اسم مفعول کی گردان مکسوبن مکسوبانی مکسوبون مکسوبتن مکسوبتانی مکسوباتن۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ حابسہ یحبسو سے، جی برہان بھائی حابسہ یحبسو سے گردان سنائیں گے اس مفعول کی۔ جی محبوساتن محبوسادانی، پہلے محبوسن، پہلے مذکر کا ہوگا محبوسن۔ محبوسن محبوسانی محبوسانی محبوسون، پھر محبوساتن، پھر محبوساتانی محبوساتن۔ محبوساتن۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جی عبد المجید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور۔ جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی درد ہے تھوڑی ابھی، کافی تھوڑا اتنا بس، لیکن کل سے بہتر ہے الحمدللہ۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ہتھوڑا لگ گیا تھا ہاتھ پہ؟ نہیں وہ نا پائپ ایک وال ٹائٹ کر رہے تھے رینچ کے ساتھ، بڑا رینچ تھا تو وہ رینچ کے ساتھ ٹائٹ کرتے ہیں، وہ نیچے ٹائل لگی ہوئی تھی، یہ جو باتھ اچھا روم کے اندر ٹائلیں لگاتے ہیں
جی جی وہ ٹائل اس طرح ٹوٹی ہوئی تھی، کٹی ہوئی، تو وہ پتہ ہے آپ کو ٹائل ٹوٹتی ہے نا، وہ اس کے اوپر وہ جو شیشہ ہوتا ہے نا بالکل بلیڈ کی طرح بنا ہوتا ہے اوپر سے، اچھا وہ اچھا جب اوپر سے وہ رینچ سلپ ہوا نا، میرا ہاتھ اس نے زور کے ساتھ وہ زور لگا رہے تھے کھولنے کے لیے، تو وہ کھل نہیں رہا تھا، وہ جب زور لگا کے لگایا تو وہ رینچ سلپ کر گیا، تو وہ ٹائل کے ساتھ ٹچ ہو کے نیچے گیا نا جب، تو وہ سارا انگلیاں ہاتھ ہتھیلیاں کٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ، کہاں کام کرتے ہیں آپ؟ سعودی عرب میں۔ سعودی عرب میں، اچھا اچھا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جدہ میں؟ نہیں، یہ ہوا خمیس۔ ہوا قمیص، یہ دمام کی خمیس طرف ہے؟ نہیں، یہ ادھر نجران کی طرف۔ اچھا، نجران کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ تو مجید صاحب، آپ یہ ہاتھ کے اوپر کوئی گلوز وغیرہ ایسا کچھ نہیں پہنتے کام کرتے وقت؟ پہنتے تھے پہلے، کبھی پہن لیتے ہیں کبھی نہیں، بس یہ ہمارے پاس نا یہ کمپنی ایک چھوٹی سی کمپنی ہے بس، اچھا، اور جس ایکسپرٹ۔ طرح پاکستان میں جس طرح وہ ہوتے ہیں نا جگاڑی، اس طرح ہی بس یہ کمپنی چھوٹی سی کمپنی ہے، بس جگاڑ لگا کے کام چلا رہی ہے۔ چلو، اللہ آسانی فرمائے، اللہ آپ کو شفا دے۔ جی، کل کی کلاس آپ نے دیکھی ہے عبد المجید صاحب؟ نہیں حضور، میں نہیں دیکھ سکا، میرے اصل میں وہ فون نہیں رک رہا تھا، بہت تکلیف تھی، یہ نہیں ہو سکتی، میرا کل نہیں ہو سکتا۔ اس میں مفعول کو ہم نے سمجھا تھا کل، اس میں مفعول کو اس کو بنانے کا طریقہ اور اس کی گردان، ٹھیک ہو گیا۔ جی، آمنہ بلال، اس میں مفعول بنانے کا طریقہ آتا ہے آپ کو؟ کل پڑھا تھا، یاد ہے؟ آمنہ بلال، جی آمنہ، مفعول کا طریقہ مضارع کی علامت ہٹا کے یا اور جی آپ کی سسٹر ہے وہ سنائے، آپ کی میم سسٹر سنائے۔ جی، آپ کی جو سسٹر ہیں نام ان کا کیا ہے؟ مضارع کی علامت جو ہے الف تا ہاں، یا نون، یہ ہٹا دینی، اور پھر میم مفتوح لگا دینا، جی جی، اور عین مفعول، آئین کلمے کو ضمہ دینا ہے، اس کے بعد واؤ اضافہ کرنا ہے، اور آخر میں واو کا تنوین ڈال اضافہ دینی۔ ہاں، تنوین یون ڈال سروں سے کیا ہو جائے گا؟ ینصرون، اس میں مفعول بنا رہے، یون سروں سے کیا ہوگا؟ ینصرون سے منصورون، ہاں، یون سروں سے منصورن کو گردان سنائے۔ منصورن منصورانی منصورون، شاباش، آواز آپ کی کٹ رہی ہے۔ منصورات، ہاں شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ منصورن، منصوران، منصورون، منصورتن، منصورتان، منصوراتن، ٹھیک ہے۔ 2-3 گردانے ہم پڑھ کے نا پھر اگلا سبق ہم دیکھتے ہیں۔ جی، اپنا برہان بھائی، عرف یعرف سے اس میں مفعول کی گردان سنائے۔ ہاں جی، یعرفو سے اس کو پہلے ہم اگر مضارع بناتے ہیں تو وہ یعرفو بن جائے گا، اور جی، یعرفو سے پھر معروفن، معروفن، شاباش، معروفن، معروفانی، معروفون، معروفاتن، معروفاتانی، معروفاتن، یعنی آگے شاباش، تاپشتون آ جائے گا۔ ٹھیک۔ جی، خالد منظور صاحب، صرف یصرف سے اس میں مفعول بنائے۔ جی حضرت، یہ یصرف سے مصروف بروزن مصروف، مفعول مصروف، شاباش، مصروفانی، مصروفون، مصروفتن، مصروفتانی، مصروفاتن۔ ہاں، ہم کہتے ہیں مصروف ہوں یہ آپ مصروف ہیں؟ جی مصروف ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ اب اچھا، سمجھ آیا یہ مصروف۔ ہاں، یہ بڑا اہم سیگا، یہ جو سیگا ہے نا، اس میں مفعول، فاعل، مفعول، بڑے ٹھیک ہے نا۔ جی ضیاء الحق صاحب، آسر یاسروں سے، یہ تو آسر یاسروں سے مفعول۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ اس میں مفعول اس کا بنے گا مسرورن،
आसरा यासिरु से यासिरु मसरूरुन नहीं मसरूरुन मसरूर जी नहीं 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 मसरूरुन आइन तो आपने पढ़ी नहीं रहे, आइन भी है ना जी। आमना ये बिलाल, लिखा कहाँ आमना है? बिलाल, हाँ फिर मैं आपको जी जी सर। ये आसरा यासिरु से आप इसमें मफूल बना लेंगी, क्या बनेगा इसमें मफूल? मसरूफुन हम्म, यासिरु से असरा म- यासिरु। अ, जी फौजिया, फौजिया बताए असरा यासिरु से इसमें मफूल क्या होगा? मसरूर मुबशर भाई, मुबशर मसरूर मसरूर जी सर। हजरत जी। जी मासूरुन मासूर, मासूरुन हाँ मासूरुन, ठीक है ठीक है। मासूरुन कैसे बनाया आपने मासूर, जरा इनको बताएं। जी हजरत, असरा की जो मुजारे मजहूल है हाँ उसका हो जाएगा यो सरू। अब यो यो सरो, सरो में क्या है, जो जी यो सरो हो जाएगा। अब यो सरो में हमें यो है वो हटाना है क्योंकि मुजारे की अलामत है। उसके बाद मीम मफ्तू लगाना है उसकी जगह, तो हो जाएगा मा। अब जो कलमा ऐन है जहाँ यानी कि स्वाद जो है, स्वाद की जगह हमें वाव देकर जिम्मा देना है, तो हो जाएगा नहीं स्वाद, स्वाद मासू। के बाद, स्वाद के, हाँ स्वाद के बाद वाव देना है, स्वाद को पेश देनी है। जी स्वाद जी 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 वही। जी स्वाद स्वाद के बाद वाव देनी है और पेश देनी है, तो हो जाएगा मासू। और जो आखिरी हर्फ है उस पर तनवीन आ जाएगी पेश की, तो मासूरुन। मासूरुन। अभी आमना और फौजी आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आई, इसको बनाने का समझ नहीं आई या ना याद नहीं किया, क्या ख्याल है? सर लफज की समझ नहीं आई थी, वो समझ आसरा वो इस तरह हासरा की समझ नहीं आई थी कि अच्छा वैसे ठीक है, चले और आगे। आगे है एक लफ्ज है सारा का यसरी को, ये सारा का यसरी को, इसमें मफूल बनाए जरा। मसरूकुन मसरूक, शाबाश, मसरूक यानी चुराई हुई, ठीक है ना। चोरी किया अस हाँ चोरी की हुई चीज। सारिक, सारिक क्या होगा फिर? ये कौन सा चोर, सीगा होगा? सारिक ये सीगा फाइल कौन सा होगा? इसमें फाइल, ठीक हो गया। इसमें सारिक फाइल। चोर, मसरूक चोरी की हुई वो चीज, जो कहते हैं ना मसरूका, माल मसरूका, चोरी की हुआ माल, ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ी, इसमें फाइल और इसमें मफूल, ठीक है जी। तो मसरूकुन की गर्दान सुनाए आप। मसरूकुन मसरूकानी मसरूकुन मसरूकतुन मसरूकतानी मसरूकातुन। शाबाश, बेहतरीन हो गया, ठीक है जी। तो आपने कल जो दो छुट्टियां हैं उसमें आपने इसमें फाइल और इसमें मफूल को बनाने का तरीका और इसकी कुछ गर्दाने, कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा सारे जो है ना तलबा, ठीक है। आज आगे हम जाते हैं आगे। जी बुरहान भाई। अच्छा हजरत, बस ये मसरूक उनके बारे में, जैसे होता है ना मसरूक का सामान भी कहते हैं, मसरूक यानी हाँ चोरी शुदा सामान, तो इसकी हाँ जब करेंगे जैसे मोनस मसरूक का तुन हाँ आ जाएगा, का जी। तुन आ जाएगा, तो मैं कहने मकसद ये है कि उसको कहाँ पे जैसे इस्तेमाल करेंगे, वरना आमतौर पे तो ये चोरी तो एक ही वर्ड में सारा कवर हो जाता है। हाँ हाँ, अब अरबी का हम देखेंगे ना, मसरूकतुन, ये तो वैसे अरबी का लफ्ज है ना, मसरूकतुन चोरी की हुई एक चीज जो मुअन्नस है। मसरूकता ने दो, मसरूकातुन जो है ना वो बहुत सारी, बस वो हम ठीक, गर्दान पढ़ रहे हैं अरबी में। तो हमारे सही जहाँ सही, इस इस्तेमाल होता है ना मसरूका, जी जी, वो ठीक है ना, सारों के लिए हो जाता है। वो सारों के लिए हो जाता है, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा इल्म है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। सर्फ और नाव जो है ना, इसे आपको कुरान समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम एक हफ्ते, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते कुरान पाक भी क्लास शुरू कर देंगे। मेरा मकसद ये कि सिर्फ थोड़ा सा गर्दाने ये जरा इनको टाइम दिया जाए, उसके बाद फिर डेली हम जो है ना एक रुकू या आधा रुकू पढ़ेंगे, ताकि फिर उसमें हमें प्रैक्टिस भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, आज का जो सबक है ना वो बहुत अहम है। आज का सबक ये मुजारे की बेस पर है। दाराबा यदरिबु, यदरिबु है ना, यदरिबु यदरिबान यदरिबुन, तदरिबु तदरिबान यदरिबुन, तदरिबु तदरिबान तदरिबुन, तदरिबी तदरिबान तदरिबु, अदरिबु नदरिबु, इसी बेस पर है। आगे है ये जी,
जहद का है, सरफे कबीर फेल जहद मालूम, ठीक है। जहद का होता है इनकार करना, यानी कि यदरिब होना है ना कि मारा है, तो इसका इनकार क्या है, नहीं मारा, ठीक है। तो क्या होगा, लम शुरू में आ जाएगा, लम यदरिब लम यदरिबा लम यदरिबू, लम तदरिब लम तदरिबा लम यदरिबना, लम तदरिब लम तदरिबा लम तदरिबू लम तदरिबी लम तदरिबा लम तदरिबना लम अदरिब लम नदरिब, ठीक है। तो ये 5 हरूफ लम लम्मा लाम में अमर लाए नहीं इन शर्तिया, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये क्या अमल करते हैं, ये फिर मुजारे पे दाखिल होते हैं, ठीक है। ये 2 अमल करते हैं। कितने अमल करते हैं खालिद साहब? ये 2 अमल 2 करते अमल कर हैं, अमल करते हैं। एक माना में अमल करते हैं और दूसरा लफ्जों में अमल करते हैं। माना में अमल ये करते हैं, लम जो यानी लम के अलावा 4 और भी हैं, हम अभी सिर्फ लम की बात कर रहे हैं। लम माना में अमल ये करता है कि जो मुजारे का माना होता है ना, करता है या करेगा, मारता है या मारेगा, इसको माजी मनफी में कर देता है, ठीक है। मतलब यदरिबु मारता है मारेगा ना, जब लम दाखिल हो जाएगा, लम यदरिब नहीं मारा उस एक मर्द ने, माजी मनफी चली जाएगी, माजी मनफी में चला जाएगा कि नहीं मारा उस एक आदमी ने। लम यदरिब नहीं मारा उन 2 आदमियों ने, लम यदरिब नहीं मारा उन सब आदमियों ने, लम तदरिब नहीं मारा उस एक औरत ने, लम तदरिबा नहीं मारा 2 औरतों ने, लम यदरिब नहीं मारा उन सब औरतों ने, लम तदरिब नहीं मारा तू एक मर्द ने। ये कौन सा अमल करेगा, ये माना में अमल करेगा। नंबर 2, लफ्जों में अमल क्या करेगा, लफ्जों में अमल ये करेगा, लम जहां जहां मुजारे के एंड पे पेश आती है ना उसको साकिन कर देगा। यदरिबू तदरिबू तदरिबू अदरिबू नदरिबू, 5 सीगे हैं मुजारे के जिसके आखिर पेश आती है। कितने सीगे हैं, 5 सीगे हैं। यदरिबू वाहिद मुज़क्कर गायब, तदरिबू वाहिद मुअन्नस गायब, तदरिबू वाहिद मुज़क्कर हाजिर, अदरिबू वाहिद मुतकल्लिम, नदरिबू जमा मुतकल्लिम। 5 सीगे को आखिर में जो है ना पेश आती है, तो ये क्या कर देगा, उनको साकिन कर देगा। लम यदरिब लम तदरिब लम तदरिब लम अदरिब लम नदरिब, ठीक है। अब आगे रह गए 9 में से 2 सीगों में कोई अमल नहीं करेगा, जमा मुअन्नस गायब और हाजिर, लम यदरिबना लम तदरिबना, ठीक है। लम यदरिबना और लम तदरिबना, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जमा लम यदरिबना, ठीक है। यदरिबू यदरिबान यदरिबून तदरिब तदरिबान यदरिबन, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, यदरिबन मुजारे में भी, तो लम यदरिबन में ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तदरिबीन तदरिबान तदरिबन ऐसे पढ़ते हैं ना, तो लम तदरिबन वो भी ऐसे ही पढ़ेंगे, 2 में अमल नहीं करेगा, ठीक है। 2 ये हो गए, 5 वो हो गए, कितने रह गए, 7 हो गए, ठीक हो गया। बाकी रह गए 7 सीगे। 7 सीगों के आखिर में नून जो है वो गिर जाएगी। इसके अलावा जितने 7 है ना, 7 के एंड पे नून आती है, सब में नून गिर जाएगी। वो 7 किस तरह है, 4 तो हो गए तस्निया के, वाहिद मुज़क्कर नहीं, तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, ठीक है। और 4 ये हो गए। अब एक जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर, 2 ये हो गए, 6 हो गए। एक वाहिद मुअन्नस हाजिर, 7 सीगे हैं। इसके आखिर में नून आता है, ये क्या कर देगा, गिरा देगा, ठीक है। अब देखिए किस तरह वो गिराता है, देखें। असल में था यदरिबानी तस्निया मुज़क्कर गायब, यहां से भी नून गिर गया। फिर था यदरिबून, लम आगे, यहां से भी नून गिर गया, ठीक है। फिर आगे था आगे तदरीबानी तस्निया मुअन्नस गायब, लम आगे, यहां से भी नून गिर गया, ठीक है। अब आ गया तदरीबानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर था, यहां से भी नून गिर गया। आगे था लम तदरीबून था, यहां से नून गिर गया। आगे था तदरीबीन था, लम आगे, ये भी नून गिर गया, लम तदरीबी हो गया। फिर तदरीबानी था, तो लम आगे, यहां से भी नून गिर गया। कितने हो गए, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 5 सीगे जिनके आखिर में पेश आती है, ये उनको साकिन कर देगा। 2 सीगों में कोई अमल नहीं करेगा, रह गए, हो गए 7 इधर। अब रह गए 7 तस्निया के होते हैं ना, पता है ना, तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, चारों तस्निया के आखिर में जो नून आता है वो गिर जाएगा।
जमा मोनस गायब यदरिबून है, उसका नून भी गिर जाएगा लम आने के साथ। जमा मोनस हाजिर का है तदरिबून, उसका नून भी गिर जाएगा। 6 7वां तदरिबीन वाहिद मोनस हाजिर का नून आता है, वो भी गिर जाएगा। तो ये अमल हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, तो कितना अमल कर दिया इसने? 2 अमल किए, लफ्जों में 2 अमल किए। जहां पेश थी उसने गिरा दी, जहां नून थी उसने उड़ा दी। बस यूं भी याद कर सकते हैं कि जहां पेश थी उसको उसने साकिन कर दिया, जहां नून था उसने गिरा दिया। सिर्फ 2 नून रह गए, जमा मोनस गायब का, जमा मोनस हाजिर का। इन दोनों के अलावा जितने भी नून थे सब इसे नून गिरा दिए इसने। जी बुरहान भाई, खुलासा बयान जी करें। हजरत। हाँ जी, खुलासा हजरत ये है कि फेल जहद जैसे मालूम और मजहूल दोनों का सेम ही असूल है। दोनों का सेम ही जी, दोनों हाँ का जी, सेम ही है। सही है। यानी ये जब भी लम दाखिल होगा। अच्छा, यहाँ पे हजरत एक छोटा सा सवाल है कि ये मुजारे और लम के दरमियान में कोई और हर्फ नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ बस ठीक है। हाँ जी, तो लम जब भी मुजारे में दाखिल होगा तो ये 2 अमल करेगा, जैसे आपने फरमाया। एक तो माना के लिहाज से अमल करेगा, दूसरा इल्फाज में तब्दीली के लिहाज से। माना ठीक के हो गया। लिहाज से ये जैसे यदरिबू, यदरिबानी, यदरिबूना, ये सारों में इसके मानी थे कि वो मारता है या वो मारेगा। यानी मुजारे या मुजारे का यानी मतलब था, लेकिन माना के लिहाज से ये बदल जाएगा, मनफी माजी मनफी में बदल जाएगा। ठीक है, माजी कि मनफी बदल उसने जाएगा। नहीं मारा या उन 2 ने नहीं मारा या उन सब ने नहीं मारा, इस तरह करके। जी और ठीक हो दूसरा जो अल्फाज के लिहाज से तब्दीली में जो आएगा, उसके गया। आपने 3 मेन बातें बताई हैं। नंबर 1 जी के जहाँ पे भी आखिर में 5 जगहों पे जो आखिरी हर्फ के ऊपर जम्मा आता था वो हाँ साकिन में बदल मुजारे, जाएगा। हाँ मुजारे में हाँ, जब जमा मुजारे आता में था। जी वो साकिन में बदल जाएगा। ठीक है। ठीक हो और गया। दूसरा आपने फरमाया कि 2 सीगे ऐसे हैं जो कि जमा मोनस हाजिर और जमा मोनस गायब, इन 2 के आखिर का नून बरकरार रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और जो नहीं होगी, बाकी 7 सीगे हैं और यानी जहां जहां पे भी आखिर में नून आखिर में आता था वो गिर जाएगा। गिर जाएगा। शाबाश। तो ये 3 तब्दीलियां हो गई अल्फाज के लिहाज से। जी जी और अगर यानी वही आपकी बात है, अगर हमें वो गर्दान आती होगी, यदरिबू यदरिबान, यदरिबू यदरिबू यदरिबानी, तदरिबू तदरिबानी यदरिबना, तो फिर ये बनाना आसान है। बिल्कुल समझ आया। जी खालिद साहब, जो आप बताएंगे कि जहाँ नून को कितने सीगों में नून गिरती है और थोड़ा उसकी तफसील बयान फरमाएं। जी हजरत, ये जो है लम जब मुजारे पे दाखिल होता है तो 2 तब्दीलियां करता है, एक मानवी और एक लफ्जी। जी जी तब्दीली में आपने जो सवाल किया है कि कितने सीगों के आखिर से नून को गिरा देता है, ये सिवाय 2 सीगों के आखिर से जी नून को गिरा देता है। बाकी 7 सब सीगों गिरा के देते नून, हाँ जी, हैं। जी 7 सीगों के आखिर से नून को गिरा देता है। 4 तस्निया के, 2 जमा मुजक्कर के हैं और 1 वाहिद मुअन्नस हाजिर का। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी आमना बिलाल, समझ आ गई बात की? जी जी जियालक जी। सर वो ना बिल्कुल आवाज बंद हो गई थी, नेट बंद हो गया था, अब चला है। अभी नेट हाँ प्रॉब्लम हो रही है। हजरत मैं अच्छा बयान करूं अच्छा। एक दफा थोड़ा? चले चले खालिद साहब, आप बयान करते हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा कि ये जो अभी हमने सबक पढ़ा है उसका खुलासा बयान करने लगा। जी खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं सरफ कबीर फेल जहद मालूम। जहद का माना होता है नफी, मनफी बनाना मुजारे को। तो ये जी इसको बनाने का तरीका ये है कि मुजारे के शुरू में लम दाखिल कर देते हैं, और लम जब दाखिल होता ठीक। है मुजारे के शुरू में, ये 2 तब्दीलियां करता है। एक तो मानवी तौर पर तब्दीली कर देता है, और दूसरा लफ्जी तौर पर तब्दीली कर देता है। माने में तब्दीली जी इस तरह से होगी, मुजारे के माना जो होता है वो हाल और मुस्तकबिल का माना होता है, और जब लम दाखिल होता है तो मुजारे को माजी मनफी के माना में कर देता है। जिस तरह के यदरिबू का माना था वो मारता है, वो एक मर्द मारता है या मारेगा, हाल और इस्तकबाल का माना दे रहा था पहले। अब जब इस पर जी लम दाखिल हो गया, लम यदरिब, तो अब ये मनफी माजी मनफी के माना में चला गया है।
نہیں مارا اس ایک مرد نے، گزرے ہوئے زمانہ یعنی ماضی کے زمانہ کا معنی دینے لگ گیا منفی میں. اور اس کی لفظی تبدیلی 3 طرح کی کرتا ہے. پہلی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتی تھی مضارع میں، اس کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے، یعنی پیش ختم ہو جاتی ہے، اوپر جزم آ جاتی ہے. جیسے یضربو تھا تو لم یضرب آ جائے گا، اور لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، ایک واحد متکلم کا اور ایک جمع متکلم کا. ان 5 صیغوں کے آخر سے پیش کو گرا دیتا ہے جن کے آخر میں پیش تھا اور جزم آ جاتی ہے. دوسری لفظی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ جو جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا، اس کے آخر میں جو نون ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. ان 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور یہ 7 صیغے ہو گئے، 5 جو ہیں جن میں پیش دے دیتا ہے، اور 2 یہ صیغے 7 ہو گئے. باقی 14 صیغوں میں سے 7 بچ گئے، تو ان کے آخر سے نون کو گرا دیتا ہے. وہ 7 صیغے ہیں، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے ہیں، اور ایک جو ہے وہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اور اس کو اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ 5 صیغوں کے آخر سے پیش کو گرا کر لم اور جزم دے دیتا ہے. باقی جو صیغے بچتے ہیں سارے جن کے آخر میں نون آتا ہے، ان سب کے آخر سے نون کو گرا دیتا ہے سوائے 2 صیغوں کے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں نون نہیں گرا. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں کافی استعمال ہوتا ہے یہ صیغہ، ٹھیک ہے نا، کہ جو نفی جات کا، تو اس کو یاد رکھنے کا بڑا فائدہ ہے. جی ضیاء صاحب، آپ کو سمجھ آ گئی؟ ضیاء الحق صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سمجھ آ گئی. جی شاباش. جن کو سمجھ آئی وہ ہینڈ ریز کریں تاکہ پھر ہمیں بھی تسلی ہو کہ ان کو سمجھ آ گئی بات. جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آمنہ بلال کو نہیں سمجھ آئی؟ آمنہ شاید ہے نہیں، ان کا نیٹ کا مسئلہ ہے. چلیں تو اب اس کی ہم تھوڑا سا گردان کی پریکٹس کرتے ہیں. جی برہان بھائی، آپ سے شروع کرتے ہیں. گردان سنائیں ذرا. جی ہمارے حضرت منور کون بھائی، سی؟ جی حضرت کون سی منور بھائی ہم نے سبق پڑھا، اس کو ذرا سن لیجئے گا بعد میں، تو انشاءاللہ ویڈیو تو پھر آپ جی جی حضرت یہی والی سناؤں؟ ہاں جی یہ والی سنائیں گے. اچھا ابھی تو نظر بھی آ رہی ہے. لم یدرب، لم یدربا، لم یدربو، لم تدرب، لم تدربا، لم یدربنا، لم تدرب، لم تدربا، لم تدربو، لم تدربی، لم تدربا، لم تدربنا، لم ادرب، لم ندرب. جی لم ادرب، لم ندرب. جی ضیاء ابھی صاحب تو دیکھ کے سنائیے. ابھی تو ابھی والی دیکھ کے سنائیں گے، تو پھر کل زبانی سنوں گا آپ سے. ضیاء صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یدرب، لم یدربا، لم یدربو، لم تدرب، لم تدربا، لم یدربنا، لم تدرب، لم تدربا، لم تدربو، لم تدربی، لم تدربا، لم تدربنا، لم ادرب، لم ندرب. شاباش. مبشر بھائی. جی حضرت. لم جی یدرب، لم یدربا، لم یدربو، یدربو، لم یضربوا، لم تد لم یضربوا. لم یدربو، لم تدرب، لم تدربا، لم یدربنا، لم تدرب، لم تدربا، لم تدربو، لم تدربی، لم تدربا، لم تدربنا، لم ادرب، لم ندرب. شاباش. ٹھیک. عبد المجید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یدرب، لم یدربا، لم یدربو، لم تدربو، لم تدرب، لم تدربا، لم یدربنا، لم تدرب، لم تدربا، لم تدربو، لم تدربی، لم تدربا، لم تدربنا، لم ادرب، لم ندرب. جی شاباش. لم ادرب، لم ندرب. جی آگے خالد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف کبیر فعل جہاد معلوم. لم یدرب، لم یدربا، لم یدربو، لم تدرب، لم تدربا، لم یدربنا، لم تدرب، لم تدربا، لم تدربو، لم تدربی، لم تدربا، لم تدربنا، لم ادرب، لم ندرب. مجهول. مجهول. لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب. شاباش. جی فوزیہ بشیر.
लम यद्रिब लम यद्रिबा लम यद्रिबू लम तद्रिब लम तद्रिबा लम यद्रिबना लम तद्रिब लम तद्रिबा लम तद्रिबू लम तद्रिबी लम तद्रिबा लम तद्रिबना लम अद्रिब लम नद्रिब। शाबाश। आपने कानून समझ लिया इसका? जी समझ। चलिए शाबाश जी। आमना, आमना। लम यद्रिब लम यद्रिबा लम यद्रिबू लम तद्रिब लम तद्रिबा लम यद्रिबना लम तद्रिब लम तद्रिबा लम तद्रिबू लम तद्रिबी लम तद्रिबा लम तद्रिबना लम अद्रिब लम नद्रिब। शाबाश। और जो भाई रहता है वो सुनाए, जो रहता है जी, जिसने भी नहीं सुनाया हैंड रेज करे, सुनाया। तो जी हमारे जी 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 अली, अली साहब सुनाए, अली अमन। लम यद्रिब लम यद्रिबा लम यद्रिबू लम यद्रिब लम तद्रिब लम तद्रिबा लम यद्रिबना लम तद्रिब लम तद्रिबा लम तद्रिबू लम तद्रिबी लम तद्रिबा लम तद्रिबना लम अद्रिब लम नद्रिब। शाबाश जी। मियाँ साहब अभी आए हैं अभी, तो मुनव्वर भाई भी आए हैं, अली अहमद, 3 भाई ऐसे हैं जो बाद में आए हैं। एक मरतबा जिया साहब आप ना ये कानून जो हमने पढ़ा उसको दोहरा दें ताकि इन्हें समझ में आ जाए, तो फिर हम आगे अगला सबक शुरू करते हैं। जी जिया साहब, जो आज हमने कानून पढ़ा है उसको जरा दोहरा दें, ये हमारे भाई नए आए हैं तो इनके लिए जरा आसान हो जाएगा। जी आज हमने क्या पढ़ा इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले हमने पढ़ा था फ़िल मज़ारे से फ़िल जाहद हो जाता है जो मनफी की अलामत है। तो हमने पहले ये मज़ारे में ये था कि उसमें फ़िल हाल और फ़िल मुस्तकबिल का माना दे रहा था। तो यहाँ मानवी और लफ्ज़ी दोनों तरह की तब्दीली हो जाती है। जैसे वहाँ था मारता है और मारेगा, और यहाँ है नहीं मारा उसे एक मर्द है, तो ये माजी की तरफ चला जाता है इसके जो मायने है। और लफ्ज़ी ये होता है कि जहाँ पहले हमने पढ़ा था यादरिबू पेश होती थी, तो ये 5 सीगे ऐसे हैं जिसमें ये जज़म आ जाती है। लम यादरिब पेश जो है वो गिर जाता है। और कुछ सीगे ऐसे हैं जिसमें नून गिर जाता है। फिर इसी तरह लम यादरिब नहीं मारा, तो इसका खुलासा यही है कि ये मैना का देता है और माजी में ये चेंज हो जाता है। ठीक हो गया जी। जी फौजिया बशीर, अब्दुल वजीद साहब आप करेंगे, सुनाएंगे, बता सकेंगे तो इसको, या तबीयत सही है तो बताएं, नहीं तो फौजिया बशीर बताए। जी फौजिया बशीर बता पाएंगी आप? नहीं सर जी समझ तो आ गई, लेकिन वो बयान करना अभी तक नहीं आया। अभी हाँ बयान करना में ठीक है। चले तो अब ये हमने इसको पढ़ा, मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ ताकि अगर जो बाद में आए भाई उनके लिए आसानी हो जाए। हमने पहले पढ़ा था मुजारे। मुजारे का माना होता है करता है या करेगा, मारता है मारेगा, जैसे यदरिबू मारता है या मारेगा, ठीक है। अब है लम यदरिब, ठीक है। तो इसको कहते हैं सफ़े कबीर फेल जहद मालूम। जहद का माना होता है इनकार करना, ठीक है जी, कि मतलब मारता है मारेगा ये मस्बत है ना, मुस्बत, और नहीं मारता इसका इनकार है कि नहीं मारा उसे का। तो जब लम दाखिल हो जाता है तो फिर उस मुजारे को माजी मनफी में कर देता है कि नहीं मारा। अब जो लम दाखिल होता है 2 अमल करता है, एक माना में अमल करता है, एक लफ्ज़ में अमल करता है। माना में अमल ये करता है कि जो मुजारे का माना हाल मुस्तकबिल का होता है ना, उसको मनफी के माने में कर देता है, माजी मनफी में। जैसे यदरिबू करता है मारता है मारेगा, तो लम यदरिब नहीं मारा उसने, बिल्कुल ही उसने इसको उलट कर दिया। ये हो गया माना में। लफ्ज़ में अमल ये करता है जहाँ मुजारे के एंड पे 5 सीगे आते हैं उसको पेश, यानी मुजारे के आखिर के जो 5 सीगे ना उनके आखिर में पेश आता है। यदरिबू है, तदरिबू है, तदरिबू अदरिबू नदरिबू। तो लम दाखिल होने के साथ इनके जो पांचों के आखिर जो है ना वो साकिन हो जाएंगे जहां जहां पेश आती है। अच्छा इसके अलावा जितने भी सीगे हैं उनके आखिर में नून आता है। इन 5 के अलावा छोड़कर ना जो 9 सीगे हैं उसके आखिर में नून आता है, तो सब के आखिर से नून गिरा देगा। सिर्फ 2 में कुछ अमल नहीं करेगा, जब मुअन्नस गायब और जब मुअन्नस हाजिर। लम यदरिब लम तदरिब या नून रहेगा, बाकी जितने भी सीगे हैं वहां से नून हट जाएगा। तो ये अमल करता है लफ्जों में। ये आज हमने पढ़ा, तो कल आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। तो ये कुरान पाक में और अहादीस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जब इसको आप याद करेंगे ना, फिर हम आपको मसादिर में लेके जाएंगे, थोड़ी वहां भी हम इसकी क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले एक दो की ताकि आसानी हो जाए।
جی یسرف، یسرف سے، یسرفو سے کون کرے گا؟ یسرفو جو ہے اس سے بنائے گا جی مبشر، جی مبشر، یسرفو سے نفی جہت بنائیں گے. جی جی حضرت. جی تو لم یصرف، لم یصرفا، لم یصرفو، لم تصرف، لم تصرفا، لم یصرفنا. اب آگے شاباش. حضرت لم تصرف، لم تصرفا، لم تصرفو، لم تصرفی، لم جی شاباش لم شاباش. تصرفی، لم تصرفا، لم تصرفنا، لم اصرف، لم نصرف. لم اصرف لم. شاباش جی برہان بھائی. آگے ہے یارفو، اس کو ذرا کریں آپ. ہاں جی، یارفو سے بن جائے گا لم یارف، لم یارفا، لم یارفو، لم تعرف، لم تعرفا، لم یارفنا، لم تعرف، لم تعرفا، لم تعرفو، لم تعرفی، لم تعرفا، لم تعرفنا، لم یہ ہو جائے گا لم عارف، لم نعرف. لم عارف لم نعرف. میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو 90% سبق یہی یاد ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ ابھی آپ کو ادھر ہی یاد ہو جائے، بس آپ کو تھوڑا بہت محنت کرنی پڑے نا تو آپ کو یہ کوئی مسئلہ نہ رہے. ٹھیک ہے جی. جی خالد منظور صاحب، یکشفو سے، یکشفو سے. جی یکشفو سے فعل نفی جہد ہوگا لم یکشف، لم یکشفا، لم یکشفو، لم تکشف، لم تکشفا، لم یکشفنا، لم تکشف، لم تکشفا، لم تکشفو، لم تکشفی، لم تکشفا، لم تکشفنا، لم اکشف، لم نکشف. لم اکشف لم نکشف. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے اور کسی نے ہے، کوئی اور ہے اس میں حصہ ڈالنے والا جس کو یہ ہو جائے؟ جی عبد المجید صاحب ہیں اور آمنہ بلال ہے. ٹھیک ہے جی عبد المجید صاحب، آپ یرکبو سے کریں گے. عبد المجید یرکبو. عبد المجید صاحب جی. جی عبد المجید صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی آمنہ بلال آپ یرکبو سے. لم ترکب، سوری، لم یرکب، لم یرکبا، لم یرکبو، لم ترکب، لم ترکبا، لم یرکبنا، لم ترکب، لم ترکبا، لم یرکب لم یرکب، لم ترکبا، لم ترکبو، لم ترکبی، لم ترکبا، لم ترکبنا، لم ارکب، لم ارکب، لم نرکب. شاباش. جی آمنہ آپ بھی سنائیں گی آمنہ؟ جی سر. جی آپ نیچے یش ربو سے سنائیں. لم یشرب، لم یشربا، لم یشربو، لم تشرب، لم تشربا، لم یشربنا، لم تشرب، لم تشربا، لم تشربو، لم تشربی، لم تشربا، لم تشربنا، لم اشربو، لم اشرب، لم نشرب. شاباش. جی عبد المجید صاحب، حامدہ یحمدو، یحمدو سے آپ سنائیں. جی حضور سوری، وہ میرا نیٹ تھوڑا پرابلم کر رہا تھا. جی یحمدو. جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یحمدو، لم یحمدا، لم یحمد، لم یحمد اینڈ ساکن ہو جائے، لم یحمد، لم یحمد، لم یحمد، لم یحمدا، لم یحمدو، لم تحمد، لم تحمدا، لم یحمدنا، لم تحمد، لم تحمدا، لم تحمدو، لم تحمدی، لم تحمدا، لم تحمدنا، لم احمد، لم احمد، لم احمد، لم احمدنا، لم نحمد. لم احمد لم نحمد. چلیں باقی دوست جو ہے نا وہ اور بھی کسی نے اگر سنانا ہو تو ابھی ہمارے پاس ہے تھوڑا سا ٹائم، کسی کو یاد ہو تو وہ بھی سنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
چلے اگلا سبق ہم شروع کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. حروف جارہ. جی حروف جارہ کتنے عمران بھائی؟ جی حضرت حروف جارہ 17 ہیں ہمارے. 17 ہیں. ٹھیک ہو گیا جی جی. سنائیں کون جی کون سے ہیں؟ باؤ. جی باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مز خلا ربا حاشا من ادا علا ان فی حتی الہ. ہاں شاباش جی. اور کسی کو یاد ہو ہینڈ ریز کرے. جی مبشر بھائی. جی شاباش. واو تاؤ کاف لامو لامو واو منزو مخلا ربا ہاشا من ادافی من ادافی ان علا حتی الہ. ہاں شاباش جی. عبد المجید صاحب حروف جارہ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باو تاو کافو لامو واو منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الہ. شاباش جی. ضیاء الحق صاحب. جی ضیاء الحق صاحب. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ و منسو و مسخلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الہ. جی شاباش جی. جی آمنہ بلال. جی آمنہ. لام واو منز مز خلا ربا حاشا من ادافی ان لا حتی الہ. جی شاباش جی. فوزیہ. جی باو فوزیہ تاو سنائیں. کافو منز مز خلا ربا حاشا من ادافی ان لا حتی الہ. شاباش. خالد صاحب یہ حروف جارہ عمل کیا کرتے ہیں؟ حروف جارہ حضرت یہ اپنے ماں بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو زیر دے دیتے ہیں. ہاں اس کو جر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ان کا اگر متعلق لفظوں میں موجود ہو تو پھر کیا کہتے ہیں اس کو؟ اگر لفظوں میں موجود ہو تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں. ہاں اور اگر لفظ میں موجود نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر. ظرف مستقر کہیں گے. جی. اچھا ایک لفظ کل آیا تھا شبہ جملہ، تو کوئی 3 بتائے گا شبہ جملہ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں یا کم سے کم 3 کا نام لے لے. کوئی ہے؟ جی برہان بھائی. جی اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل مصدر اور ہاں جی 4 ہو گئے اور ایک وہ تھا. 3 کا کہا تو چلے. شاباش جی. دانش بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں جناب؟ سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک. ہم حروف اور جارہ سر پڑھ میں رہے نہیں آ سکا. جی 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 آپ بزی تھے کہیں، کوئی بات نہیں. جی سر. تو حروف اپنے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا ضمیروں کا. ٹھیک ہے نا. تو کتنی ضمیریں ہیں کوئی بتائے گا؟ ضیاء الحق صاحب کتنی ضمیریں پڑھی تھی آپ نے؟ کل ضمیریں کتنی، ان کی اقسام کتنی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ضمیریں جی 70 ہیں اور ان کی اقسام 5 ہیں. جی 5 تقسیم بتائیں گے. جی اس میں پہلی جو ہے مرفوع متصل، مرفوع ہوں منفصل، پھر اس کے ہوں منصوب متصل، ہوں منصوب منفصل اور ہاں مجرور متصل. مجرور متصل. ٹھیک ہو گیا. جو مجرور متصل ہے اپنا مبشر بھائی، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ مجرور متصل کی حضرت 2 طرح سے تھی. ایک تو اسم کے بعد آتی ہے اور ایک حرف جر کے ساتھ آتی ہے. حرف جر کے ساتھ آتی ہے. شاباش. ایک اسم کے ساتھ آتی ہے، جیسے کلامو آ گیا، کوئی بھی نام ہے اس کے ساتھ ضمیر آ جائے تو ٹھیک ہوگی. ایک ہوتی ہے حرف جر کے ساتھ. تو ہم اس لیے پھر ساتھ میں حروف جارہ بھی پڑھے تاکہ آپ کو اس چیز میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. فوزیہ بشیر حروف جارہ میں سے فی آتا ہے، فی کے ساتھ 14 ضمیریں لگا کے ذرا پڑھیں. فوزیہ بشیر فی کے ساتھ آپ نے 14 ضمیریں لگانی ہیں. فی کے ساتھ ہاں جی. فی ہی فی نہیں فی ہی شاباش. فی ہی ما فی ہم فی ہا شاباش. فی ما فی ہن فی کا فی کما فی کن فی کما فی شاباش. کنہ
फी कुन्ना, इसके बाद आएगा फिया फीना, फिया और फीना। जी जी अली अहमद साहब, अली अहमद साहब अन से जरा आप 14 ज़मीरों का आप गर्दान करें अन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीहु फी, फीहु फीही फीहुम, अन से अनहु अनहुमा, अनहु अनहुम अनहुमा, अनहा और अनहो, अनहा अनहुमा अनहुन्ना, अनकी अनका अनकुमा अनकुन अनकुमा अनकुम, अनकी अनकुमा अनकुन्ना, अन्ना और अन्नी और अन्ना। आमिना बिलाल आप थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। आमिना बिलाल आप सुनाए अन से, कौन सी सर? अन से, अन से। अनहो अनहुमा अनहुम अनहा अनहुमा अनहुन्ना अनका अनकुमा अनकुम अनकी अनकुमा अनकुन्ना इन अन अन्नी अन्ना। अन्ना अन्ना। जी जियाउल हक साहब, ये अनहु और अनहा में क्या फर्क है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनहु जी एक मर्द के लिए आएगा, तो अनहुमा दो ये तस्निया हो जाएगी, नहीं मेरे अनहुम ये जमा हो जाएगी। नहीं, अनहु और अनहा में क्या फर्क है? जी अनहु जो है ये मर्द के लिए और अनहा जो है ये औरत के लिए। अनहु ये मर्द के लिए आ गया, जैसे हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु कहेंगे, अनहु जी जी अनहु। और हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब ये गलती नहीं होनी चाहिए कहीं भी, नहीं, जब भी आप नाम लेंगे, ठीक है, तो आपने इसी तरह, ठीक है, अनहु और अनहुमा में इंशाल्लाह आपको ये हो जाएगा। अच्छा, वो एक अरबी अक्सर आपने टीवी टॉक शॉक देखे होंगे, उसमें कहते हैं मनो अन, तो खालिद साहब मनो अन बेहतर है क्या मिनो अन बेहतर है? ये हजरत मिन है हरफ जर। हाँ, तो वो जो कहते हैं मनो अन, जी अब्दुल मजीद साहब क्या कह रहे हैं आप? जी हजूर, वैसे अमूमन तो मनोअन ही बोला जाता है, लेकिन असल लफ्ज जो मिनोअन। हाँ मिनोअन, यानी इधर से उधर तक मिनोअन, ठीक है जी। अब खालिद साहब, अब आगे जो हमने कल सबक पढ़ा था, ठीक है जी, वो आपके सामने है। उर्फ जारा पढ़े थे, उनकी कुछ मायनी पढ़ी थी, और जार मजरूर और मुतल्लिक जो आपने सुनाया। आज है तमरीन। दर्ज झेल जुमला में जार मजरूर की पहचान करें। जी जरा पहचान करें, इसमें जार कौन सा, मजरूर कौन सा है? जी इसमें अर्रजुलानी फिद्दारी, इसमें फा हरफ जर है और अद्दारी मजरूर है। जी अस्सखिय्यु करीबुम मिनल्लाह, इसमें मिन हरफ जर है और इसमें जलालत जो है वो मजरूर है। मजरूर है, तीसरा ठीक जुमला हो है गया। ये तो मेरे ख्याल में आसान है, आसान है सबके लिए। क्या ख्याल है? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ये तो आसान हो गया ना, बिल्कुल। चले पढ़ ले थोड़ा ही सबक जी। तालिबात फिल गुरफती, हाँ जी, इसमें फिल गुरफती फा हरफ जार है और गुरफा जो है ये गुरफा के मजरूर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इतना ही है, आसान है। अब आज का सबक मोरब और मबनी। सबक क्या है? मोरब और मबनी। जी जी अब्दुल मजीद साहब। साहब ये जो मजरूर और जार, रुपए जार का तो पता चल चुका है, हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं। तो मजरूर जो हरफ जार के बाद आएगा, जिस तरह फी के बाद गुरफा आया और मीन के बाद अल्लाह, तो ये जो हरफ जार के बाद आएगा उसको मजरूर कहेंगे। जी उनको मजरूर कहेंगे, ये मजरूर कहेंगे इसको। जी सही हो, ठीक हो गया। अच्छा, बीच में हमारा पीछे का सबक रह गया, तो उसको हम दोहराते हैं, पढ़ते हैं। हमने जुमला इसमें भी पढ़ लिया था, ठीक है जी, और फेलिया भी पढ़ लिया था। बीच में रह गया था जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया का बयान, ठीक है। अच्छा, आप इस इतवार को इंशाल्लाह आपको टेस्ट भेजा जाएगा, तो आपने जितना पढ़ा है सर्फ और नहव का, बाकी किताबों का, तो उसको आपने हल करना है, ठीक है जी। 100 नंबर का होगा, तो ये मंथली टेस्ट होगा आपका, ताकि आपको पता, हमें मालूम हो कि आपने कितना सीखा है, कितना आपको ये बात समझ आई है, ठीक है। तो दोहरा लीजिएगा जितना भी आपने पढ़ा। कितने बजे भेजा जाएगा सर? ये इतवार को सुबह इंशाल्लाह 8 बजे तक पहुंच जाएगा आपको।
تو جی سر آپ 10 منٹ میں کر لیں گے انشاءاللہ. جس نے پڑھا ہوگا نا اس میں وہ 10 منٹ میں وہ سارا وہ اس میں صرف MCQs ہوں گے. یس نو آپ کرتے جائیں گے, ٹک کرتے جائیں گے, تو آپ کا انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ میں آپ اگر نہیں بھی سمجھ آتا تو تھوڑا سا ٹائم اگر اس کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں بڑا آسان ہم بناتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ نے جو پڑھا وہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ اس کو دیکھیے گا, اور خاص طور پر اس میں یہ دیکھیے گا کہ کتابوں کے مصنفین کون ہیں. یہ بھی ہم نے اس میں کچھ سوالات ڈالنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہوگا ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا مصنف کون ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں باقی جو آپ نے پڑھا ہے اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ. تو آپ دہرائی کر لیجیے گا. اچھا, جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان. جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ خبریہ خبر کہتے ہیں. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا, جیسے زید عالم, زید عالم ہے, جا بکر, بکر آیا. اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں یا انشاء کہتے ہیں. مان ہوا کون ہے وہ, حال ذهب خالد, کیا خالد گیا. ٹھیک ہے, اس کو کہیں گے جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ کی اقسام ہے آگے. پھر جملہ انشائیہ یعنی آپ نے پڑھ لیا نا کہ جس جملے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے, یعنی ایک بندہ بات کر کے خاموش ہو جائے تو ہم اس کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ کی اقسام. جملہ انشائیہ کی کچھ اقسام ہیں جو یہ درج ذیل ہیں. امر, یہ بھی جملہ انشائیہ میں شامل ہو جاتا ہے. وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا, جیسے انصر, تو مدد کر. اب اس کو ہم سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. نہیں, وہ جملہ جس میں کسی کام سے روکا, جیسے لا تکفر, انکار مت کر. ٹھیک ہے, کفر مت کر. استفہام, وہ جملہ جس میں سوال کیا گیا, اجا زید, کیا زید آیا. تمنی, وہ جملہ جس میں کوئی آرزو کی گئی, جیسے لیت زید فاز, کاش کے زید کامیاب ہوتا. ترجی, وہ جملہ جس میں کوئی امید کی گئی ہو, لعل زیدن جا, شاید کہ زید آ جائے, امید کی گئی ہے. عقود, وہ جملہ جس میں کوئی عقد کیا گیا ہو, یعنی خرید و فروخت کے بارے میں, جیسے بیعتو, میں نے بیچا, نکاح, تو میں نے نکاح کیا. قسم, وہ جملہ جس میں کسی کی قسم کھائی جائے, جیسے احلف باللہ, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. دعا, وہ جملہ جس میں دعا کی گئی, جیسے یرحمن اللہ, اللہ ہم پر رحم فرمائے. تو یہ جتنے بھی جہاں بھی امر آئے, نہیں آئے, استفہام, تمنی, ترجیح, عقود, تو یہ پھر کیا ہو جائے گا, یہ جملہ انشائیہ ہو جائے گا. کیونکہ اس میں کوئی خبر نہیں دی جائے, وہ دعا کر رہا ہے اللہ ہم پر رحم فرما, تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے سچا یا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم جملہ انشائیہ کہیں گے. نوٹ, جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ خبریہ ہوتا ہے. یہ جو جملہ انشائیہ کی اقسام ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی جملے ہوتے ہیں وہ جملہ کیا ہوتے ہیں, جملہ خبریہ ہوتے ہیں. جی برہان بھائی, تمرین نمبر 1 پڑھیں. جی, تمرین نمبر 1, جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جملہ خبریہ کے جس کے سننے کے بعد جو ہے اس کی خبر کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں. اور جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں جس کے سننے کے بعد ہم اس کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. جملہ انشائیہ کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ جملہ انشائیہ کی ابھی آپ نے 8 اقسام بتائی ہیں, جس میں نمبر 1 امر, نہیں, استفہام, تمنی, ترجیح, اور اس کے بعد تھی قسم, اور ہاں جی دعا, اور پھر قعود, جس میں خرید و فروخت. جی, یہ 8 ہو گئی. ہاں جی. پھر جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کو اور کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت خبر کہتے ہیں. جملہ انشائیہ کو خبر, جملہ خبریہ کو کیا کہتے ہیں؟ خبر بھی کہتے ہیں. اچھا, خبر بھی کہتے ہیں. اور جملہ انشائیہ کو اور کیا کہتے ہیں؟ اور جملہ انشاء کہتے ہیں, اور خبریہ کو خبر کہتے ہیں. انشاء, بس ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے جی. خالد بھائی, تمرین نمبر 2, غلطی کی نشاندہی کریں. جی, کی نشاندہی کیجیے. جن جملوں میں کسی عقد کے بارے میں خبر دی جائے انہیں عقود کہتے ہیں. جی, ٹھیک ہے بات. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, جس جملے میں کوئی امید کی گئی ہو اسے تمنی کہتے ہیں. جی, یہ غلط ہے. ہاں, ترجیح آئے گا. جی دانش بھائی, تمرین نمبر 3 کریں. سر, اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اچھا, خبریہ اور انشائیہ, اور یہ جملہ خبریہ ہے. یہ جملہ خبریہ, شاباش. لینصر خالد, چاہیے کہ خالد مدد کرے. سر, یہ بھی خبریہ ہے.
चाहिए कि मदद करें। ये पे देखे ना, यंसुर सीगा कौन सा है? यंसुर सर ये अमर का है। ये अमर गायब का सर है, ये अमर का है और उसमें इंशा है सर। ठीक है, इंशा इंशा ही है, है। जुमला इंशा ठीक जी। है सर। तोहफतुल मुमिनिल मौत, मौत मोमिन के लिए तोहफा, ये खबरिया जुमला खबरिया है सर। मौत मोमिन के लिए क्या इस्तरईतुल है? किताब तोहफा है। हाँ जी, तो ये क्या हो गया, मैंने खबरिया क्या कि पढ़ा है? इंशाइया? अच्छा सर ये इंशाया है, नहीं ये तो खबरिया है और नीचे वाला हाँ, इंशाया इस्तरईतुल किताब है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी। जी, हल समेतो सौतन, क्या तू आवाज सुन रहा है समेतो के समेता। सर? समेत सौतन, सॉरी सर। हाँ ये भी इंशाया है सर। देख ले, हाँ सर हल ये आ गया हल ना, इस्तिफामिया। शाबाश, जी जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, हल आ गया। उन ठीक सुरिल है। फकीरा, उन सुरिल फकीरा, फकीर की मदद कर। हम्म, यार सर ये भी इंशाया है, अमर है इसमें। शाबाश। जियाउल साहब, जियाउल साहब आगे आप करें। बेतुल कलम अमसी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर तर्जुमे में थोड़ा मुश्किल है, बैतुल आलम अमसी। हाँ मैंने कलम बेचा, कल मैंने कलम बेचा था। जी ये खबरिया है। खबरिया है? जी नहीं। कैसे खबरिया? उसमें एक है ना उकूद भी है। हाँ बेत उकूद, उकूद का माना होता है खरीद फरोख्त, उसमें उकूद है ना इंशाइया में। जी जी। हाँ तो इसलिए ये इंशाइया हो जाएगी। सही है। अच्छा आगे क्या है? लईता खालिदन जा। लाइता खालिदन जा। हाँ, जी माना क्या बनेगा इसका? लाइता काश के खालिद आता। काश के खालिद आता। सर ये भी खबरिया है। निकाश पीछे हमने पढ़ा है ना, वो लईता काश, काश वाला जो ना वो इंशा में शामिल है। जी बुरहान भाई आगे पढ़ेंगे। जी हजरत। बुरहान भाई, जी हाँ जी। आगे बताएं। उक़सिमु बिल्लाह, ये कसम वाला हो गया, तो ये जी इंशाइया की एक किस्म है। इंशा, ठीक हो गया। हाँ जी। रब्बना इग़फिर लना, ये दुआया है, तो ये भी इंशाइया की किस्म है। ला तुज़लिमिन नास, ये नहीं का है, और ये भी इंशाइया की एक किस्म है। रहिमकल्लाह, ये भी जो वो दुआया में आ जाएगा ना। जी जी, दो में आ जाएगा। हाँ जी, तो फिर ये भी इंशाइया की एक किस्म है। इंशाइया की, माशाल्लाह। तो आज ही आपने सबक भी इसको पढ़ भी लिया और आज ही अल्हम्दुलिल्लाह आपने समझ भी लिया। ठीक है, तो अब आपने कितने सबक पढ़ लिए हैं माशाल्लाह? बहुत ही नहीं पढ़ लिया। तो ये देखें, यहां से आपने पढ़ा है लफ्ज और उसकी अकसाम, यहीं से पढ़ा है ना आपने? जी जी जी। ये भी आपने लफ्ज अकसाम में क्या आएगा? मौजू की अकसाम, फिर मुफरद और मुरक्कब, हाँ, फिर जुमले की अकसाम, जुमला इसमिया, जुमला फेलिया इसमें आ गया, तमरीन आ गई। नंबर 2 इसम फेल हर्फ की अलामात, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है जी, अलामात इसम कितनी हैं? ठीक हो गया। फेल की अलामात कितनी हैं? फिर मारफा और नकिरा पढ़ा है आपने। जी जी, अपना दानिश भाई, मारफा और नकिरा, तो मारफा की कितनी अकसाम है इसमें? सर इसमें या वैसे मार्फा की? वैसे वैसे मारफा में। मार्फा खालिद साहब, खालिद मंजूर साहब, मारफा की कितनी अकसाम है? मारफा की हजरत 7 किस्में हैं। 7 किस्में। हाँ, मारफा की 7 किस्में। ठीक है जी। तो और नकिरा की कितनी अकसाम है? नकेरा की नहीं, ये नहीं हजरत मेरे ज़हन में। जी मुबशर भाई, नकरा कितनी अकसाम है? सर दो पड़ी थी हजरत। जी हाँ, जी अस्सलाम जी, 3 किस्म है नकरा की। गोल कौन ताका कौन सी? होना, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। ये नकरा की किस्म है। ये तो मुअन्नस की। हाँ अच्छा, जो अभी साहब, हजरत दो थी जो हजरत। अब्दुल मजीद साहब, जी अब्दुल मजीद साहब।
ये हजूर मार्फा के बाद बाकी सब नकरा होते हैं। जी 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 मार्फा के अलावा बाकी जो है सब नकरा। हाँ, मार्फा की इसके अलावा क्या है जी, सारी क्या है, नकरा है। ठीक हो गया। चले, मैं थोड़ा सा आपसे प्रैंक भी कर रहा हूँ। मुज़क्कर और मुअन्नस की बयान अब बताएं। आज जामी साहब बताएं कि मुअन्नस की अलामत कितनी है। मोनस की 3 अलामत है, गोल ता का हाँ होना और हाँ, अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा का होना। अलिफ मकसूरा और अलिफ मुमददा का होना। ठीक हो गया। चौथी होती है समाई। चलो वो भी आप, ये हो गया। अब आगे हम आते हैं सबक अगला हमारे वाहिद, तस्नीया और जमा। ठीक है जी। जी जिया साहब बताएंगे कि जमा की कितनी अक़साम है। जिया साहब, जमा की कितनी अक़साम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा की जी 2 किस्में हैं, एक जमा सालिम होता है और एक जमा मुकस्सिर होता है। शाबाश। जमा सालिम और जमा मुकस्सर। मुकस्सर स्पेलिंग है, टूटी हुई, जमा मुकस्सर। ठीक है। अच्छा जी, आगे बताएंगे हमारे जरी दानिश भाई, जमा मुकस्सर, अच्छा जमा सालिम की कितनी अक़साम है। जमा तसीही और जमा तकसीर। नहीं, जमा तस्हीह की कितनी अक़साम है। जी सर। जमा सालिम का दूसरा नाम क्या है। सर जमा तसीही। तस्हीह, और इसकी कितनी अक़साम है। सर सॉरी सर, बुरहान मैं भाई, जरा जी हजरत। छुट्टियों का नुकसान होता है। जी हजरत। छुट्टियों की वजह से। हाँ जी बुरहान भाई, जी जमा हाँ सालिम जी की कितनी अक़साम। जमा सालिम की कितनी अक़साम है, अभी तो मुझे दोहराना पड़ेगा। हाँ जी जी खालिद साहब कह रहे हैं, मैं बताऊंगा। जी खालिद साहब। जी हजरत, जमा सालिम की 2 किस्में हैं, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। हाँ, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है जी, शाबाश। ये मुबशर साहब, जमा मुज़क्कर सालिम की कोई अलामत है, कैसे बनती जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम में हजरत एक तो वाव और नून लगा देते हैं, जी जी ऊना कर ठीक है। देते हैं। जी या और नून हो जाएगी, जैसे सालिहीन। ठीक है, ये या सिर्फ आपको सालिहीन थोड़ा सा सालिहीन। पीछे दोहराई करवा रहा हूँ ताकि फिर जी जो है ना आसानी हो जाए, देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद आपने पढ़ा है मुरक्कब इजाफी, तो बहुत ही प्यारा सबक है। ठीक है, मुरक्कब इजाफी, तो ये क्या होता है मुरक्कब इजाफी, कौन बताएगा। मुरक्कब इजाफी क्या होता है जी मुबशर साहब। जी जी, जब एक इसम दूसरे इसम की तरफ मतलब मंसूब हो तो जी उसे, अच्छा एक मिनट तो जी, तो मंसूब हो तो उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। इसमें हजरत पहला जो जुज होता है उसे मुजाफ कहते हैं, दूसरे को मुजाफ इलैह कहते हैं। ठीक है। अब्दुल मजीद साहब, जो मुजाफ होता है उसके लिए कोई कंडीशन है कि नहीं है। मुजाफ के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब्दुल मजीद साहब, कुछ है जहन में। जी कौन बताएगा जी, फौजिया बशीर बताएगी कुछ। फौजिया ना बशीर। तनवीन और ना ही अलिफ लाम आएगा। हाँ शाबाश। ना उस पर तनवीन आती है, ना उस पर अलिफ लाम आता है। जो मुजाफ होता है ना, तो जैसे गुलाम ज़ैदिन, जो पहला गुलाम है ना इस पर तनवीन आएगी, ना इस पर अलिफ लाम आएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये सबब भी आपका कवर हो गया। मुरक्कब तौसीफी, क्या बात है, मुरक्कब तौसीफी। अच्छा जी, मुबशर भाई माशाल्लाह इसको याद है। और कोई भाई जिसको याद मुरक्कब तौसीफी किसी के जहन में हो, बुरहान भाई के भी जहन में है। जी दानिश भाई को बारी देते। जी दानिश भाई, मुरक्कब तौसीफी का जरा खुलासा बयान करें कि वो क्या होता है। सर मुरक्कब तौसीफी में एक जुज़ मौसूफ होता है, दूसरा सिफ्त होता है। शाबाश। तो मौसूफ सिफत में कितनी मुताबकत होनी चाहिए। 4 चीज़ों में, तज़किर व 4 चीजों में। तानीस हाँ और तारीफ व तनकीर, वाहिद शाबाश। तस्निया जमा और हम्म, मारफा नकरा। शाबाश। ठीक है, 10 में से 4 होनी चाहिए। चलिए, आपको याद है इतना, माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो मुरक्कब तौसीफी भी आपने पढ़ा है। ठीक है जी। और जुमला फेलिया, ये भी आपने पढ़ा है। जुमला फेलिया किसे कहते हैं। अली, अली भाई, हमारे साथ अली भाई हैं। अली भाई, जुमला फेलिया किसे कहते हैं। अलग है वो, फेल है वो जुमला फेलिया कहलाता है। हाँ, इसका पहला जुज़ फेल हो
उसको जुमला फेलिया कहते हैं। ठीक है, शाबाश जी। मुबशर भाई, फेल लफ्जों में अगर फेल के बाद फाइल हो, फाइल जाहिर हो, जी सर। की हालत क्या जी होगी फिर? जी सर। अगर फेल के बाद फाइल जाहिर हो तो फिर फेल की हालत क्या होगी? फेल वाहिद की हालत वाहिद हजरत फायद रख जी, फेल वाहिद ही रहेगा हजरत, क्या फेल वाहिद रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, न तस्निया होगा ना जमा होगा। चलें जामी साहब, अगला सवाल आपकी और आपकी और है। जुमला इस्मिया, जी हुजूर। जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? जुमले के पहला जिस जुमले के पहला जुज में इस्म हो तो जुमला इस्मिया। तो उस पहले जुज को क्या कहते हैं? मुब्तदा मुब्तदा मुब्तदा। पहले जिसको क्या कहते पहला हैं? जिसको मुब्तदा। मुब्तदा जी। दूसरे को क्या कहते हैं? खबर बोलते हैं। खबर बोलते हैं। मुब्तदा में असल क्या होती है? मुब्तदा कैसा होता है? मुब्तदा मारफा होता है। हाँ, मुब्तदा मारफा होता है। खबर क्या होती है? खबर नकरा। शाबाश, ठीक हो गया माशाल्लाह। इतना आपने पढ़ लिया है। हाँ, देखा जाए तो काफी नहीं पढ़ लिया। जुमला खबरिया और जुमला इंशिया आपने पढ़ा है। उसके बाद हुरूफ जारा आपने पढ़े हैं। 11 सबक ये हो गए आपके। मुअर्रब मबनी रहता है आपका, मुअर्रब, और उसकी इकसाम हो गया। ज़मार, फिर आपने ये पढ़ा है 14वां सबक आपने पढ़ा है ज़मीर है। ठीक है जी, तो बीच में 2 सबक आपके रह गए, बाकी माशाल्लाह 14 तक आपने पढ़ ली है। तो ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। जिसने अभी तक बात नहीं की वो ये ज़मीर बता सकेगा, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं सुनाया हो। ऐसा कोई हमारा दोस्त जिसने अभी तक इसमें हिस्सा न डाला हो। जी जी, रफिया बीबी। फौजिया नाम है आपका? क्या नाम है? रफिया? जी फौजिया। फौजिया जी, ज़मायर की थोड़ी तफसील बयान करें। जो इसम मुतकल्लम मुखातब या गायब पर दलालत करे उसे ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मरफू मुनफसिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। और ये ज़मीर मरफू ये 14 हर किस्म में 14 ज़मीरें और कुल 70 ज़मीरें बनती हैं। कुल कितने बन गई ज़मीरें? 70 ज़मीरें बनती हैं। हाँ, 70 बन जाती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपने 1 महीना आपको हो गया पढ़ते हुए, तो आपने कितना फर्क महसूस किया कि आपको कितना इसमें फायदा हुआ? इस बारे में आप कुछ बताएंगे? जी सर, काफी इजाफा हुआ इल्म में, तो ठीक हो गया, समझ भी आ रही है। चले माशाल्लाह, समझ भी आ रही है, काफी फर्क भी हुआ। जी अली अमन साहब, आपको कुछ इससे फायदा हुआ है क्लास पढ़ने से? जी जी मुफ्ती साहब, बड़ा फायदा हुआ है। जब कुरान पाक बंदा पढ़ता है तो देन में आता है कि ये ज़मीर है या ये पड़ी हुई है या ऐसे, बड़ा फायदा हुआ है। जी बुरहान भाई। जी हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो पिछले साल भी आपसे शुरू किया था, तो जब भी फायदा हुआ था फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी भी दरमियान में मुश्किलात तो थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हो रहा है। इस वजह से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई क्लास रहे ना। ठीक है जी। दानिश भाई। जी सर, बहुत फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि 5-6 दिन मैंने दरमियान से काटे, तो उसका भी आज पता लग गया मुझे कि आगे नुकसान होता है। नुकसान होता है, तो जो है ना वो छुट्टी का। तो इंशाल्लाह आप इसको दोहराइएगा। ये आपको इंशाल्लाह परसों जो है ना आपको टेस्ट मौसूल होगा। ठीक है जी, तो आप उसको करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। चले, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। सर ये टेस्ट जो है वो कौन कौन सी बुक का होगा? टेस्ट एक तो होगा सर्फ का होगा, फिर नाव का होगा, ठीक है, और तीसरा होगा अपना जो है वो उसका इंशाल्लाह अरबिया का, 3 का होगा।
हाँ 3 का होगा। ठीक सर। ठीक है, हाँ ठीक है, जी ठीक है। सर। सर चले ये जो चले हम रियाजुल सालिहीन पढ़ रहे हैं तो इसका ये भी हमने याद करनी होती है हदीसें? नहीं, वो तो वो आपका शौक है, उसको जितना बार बार पढ़ेंगे उसका आपको फायदा है जिंदगी में। कहीं बात करना का मौका मिल जाता है, कहीं ऐसी चीज, मतलब ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ताला उसको तरोताजा रखे। नदर अब्दन समी मकालती, जिसने मेरी बात को सुना, उसको दिल में जगह दी और उसको अदा की, आगे पहुंचाया, तो अल्लाह ताला उसको तरोताजा रखे। तो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है उस आदमी के लिए, तो उसमें हम भी शामिल हो जाए कि उसको हम पढ़ें और कुछ उसमें से जितना हो सके उसको याद रखें, ज़हन में रखें। मौका माल मिलते हुए हम उसको बता सकते हैं कि ये आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, तो वो हमारे लिए ज़रिए आखिरत है। ठीक है जी। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि ना जो आप हमें पढ़ाते हैं तो उसमें से आप कुछ ना कुछ कोई थोड़ा बहुत पूछ भी लिया करें ताकि हम ईमानदारी से वो भी सबक याद कर लिया करें, वो मतलब कि एक सबक की तरह वो भी याद कर लिया करें। उस रियाजुस सालिहीन का जी वैसे जी सबका जी वही रियाजुस सालिहीन मतलब कि आप पढ़ाते हैं जिस तरह उस तरह दूसरे दिन हमसे कुछ ना कुछ पूछ लिया करें ताकि हम ईमानदारी से वो भी। हाँ वो ठीक है, दूसरे भाई की मैंने ड्यूटी लगाई है ना, उसको मैं कह दूंगा कि उसमें से भी आपको जरूर पूछ लिया करेंगे। ठीक है जी। और हो सके ठीक है तो उसमें भी कुछ सवाल, फिर अगर आप चाहती हैं तो उसमें भी 1-2 सवाल हम ऐड कर देंगे, तो ताकि फिर आपकी उसमें जो है ना उसमें शौक कायम रहे। नहीं सर अभी। ठीक हो गया जी जी। ठीक है सर। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर 2 दिन के बाद मुलाकात होती है। ठीक है जी। तो कोशिश करें, बस इसको कंटिन्यू रखें, कोशिश करें कि आपका काम थोड़ा बहुत चलता रहे, कतरा कतरा दरिया बन जाता है इंशाल्लाह, तो इससे बहुत कुछ फायदा हासिल हो जाता है। ठीक है जी। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।